the level of distrust that the investors have towards promoters is something that I will never be capable of, because I have been a founder myself / promoter, and मेरी empathy हमेशा उस तरफ चले जाते हैं कि नहीं यार बंदा फाइट मार रहा है तो बुरा वक्त चल रहा है तो क्या हो गया, आई विल इन्वेस्ट एंड यू नो इट विल डू वेल. एंड दैट इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग, बिकॉज यू हैव टू बी अ सिनिकल पर्सन व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग. यू हैव टू यू नो गेट रिड ऑफ ऑल इमोशंस लाइक अ फाउंडर्स जर्नी. अगर सब कुछ अच्छा होता है तो जोमेटो, स्विगी ऐसी चीजें होती हैं. अगर ठीक ठीक होता है तो कुछ हमारे जैसा हो जाता है, और बहुत सारे होंगे. शटडाउन होता है. दैट्स हाउ द पावर लॉ ऑफ स्टार्टअप्स इज. सो द मूवी इज कॉल्ड गिच पिच. इट इज कमिंग इन cinemas on 8th of August. The film is about father and son's relationships. 3 लड़कों की कहानी है 2001 में. First 2-3 scripts were so bad. Who decided whether it was bad? It wasn't. पता चलता है आपके दिल में ही, आपको पता होता है. आप पढ़ाते हो. स्टार्टअप में कोई फीडबैक देता था ना, अरे बहुत बढ़िया यार, वी कैन इम्प्रूव द ऐप. यू कॉल अप योर प्रोडक्ट मैनेजर, भाई इसमें ना ये करना है, ये करवाओ, ये इट मेक सेंस, लेट्स डू द एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे कोई कुछ बोलता है तो ऐसा यहाँ सीधा लगता है कि यार am I not good enough? Do I not have the talent? At the end of the film, if one person is happy and that is you, that is all that this field can give you, because everything else is outside your control. If you find this in this lifetime, you know, the many pivots that one can do. Correct. It's really squeezing life to the fullest. बिल्कुल. Do you think this is really a good life, or you would want to go back and say, no, I really want to settle life? ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है. मतलब ये there is no not even a second thought on this. लोग तरस जाते हैं अपने दिल की तमन्नाएं पूरी करने के लिए. हमने तो स्टार्टअप से लेके फिल्मों तक दोनों में जो मन किया वो किया. So hello everybody, and we are back with Second Act podcast series. Today I want to tell you, एक होता है ना, आप लोगों को लाते हो और फिर पूछते हो कि आपकी सेकंड एक्ट रियली क्या स्टोरी है. आज मेरे साथ वो हैं जिनकी लिटरली फिटिंग स्टोरी है सेकंड एक्ट की. आई वुड से अ पर्सन हु शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग अ लॉयर to a tech person selling his company to Amazon, and now a director, writer, everything, or like whatever. So he's made a film called Gitch Pitch. I'm very intrigued to know more about it. So let's welcome Ankur Singhal. Thank you. Thank you so much. Welcome to Second Act podcast. This is that space which I started out of my love for knowing stories and stories of lots of reinventions. I know that कुछ भी रीइन्वेंट करने के लिए बहुत कुछ अंदर टूटता है, एंड तभी हम यहाँ पे बैठे हैं. जी. तो वी विल टॉक अ लॉट अबाउट दैट, बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट मेड you do all of this, and now, you know, completely from literally having Excel files to being so writing creative. A script and all that. So, okay, so welcome, and Ankur, tell us a little bit about your background, of course, so that I can start bringing the movie bit in very quickly. बिल्कुल. Thank you for having me. I grew up in Chandigarh, and it was a regular middle class home, and थोड़ा काफ़ी we were told that you have to do well academically and, you know, get into a good college and all. So वहाँ से फिर then I went to National Law School Bangalore, 5 years of doing law. कहने के लिए पढ़ रहे थे हम, but I didn't like it too much. मतलब मेरे लिए नहीं था, but we also were lucky that we graduated right at the peak of 2007 was like right before the 2008 crash. So we all got good jobs, and you know, I went to London for my first thing. I was a corporate lawyer there for about 2 years. But उस टाइम भी मेरा मन तो ये था कि to you know do a tech startup. एंड उस टाइम पे फ्लिपकार्ट अभी आया ही था, जोमेटो अभी स्टार्ट ही हुआ था. दिस 2007-8, अभी वेरी अर्ली फॉर स्टार्टअप इकोसिस्टम. बट आई न्यू दैट आई वांटेड टू डू अ बिजनेस. सो आई क्विट इन 2009 एंड आई केम बैक. एंड आई थिंक सो ये मेरी मतलब दैट वाज माय फर्स्ट चेंज, यू नो, बहुत मेजर चेंज, और काफ़ी टफ चेंज था वो भी. लॉ में आपको सिखाया जाता है कि यू हैव टू फिगर आउट व्हाट कैन गो रॉन्ग, एंड यू नो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट. whereas business is about optimism, what can go right, and that reorientation is not easy because आप और दुनिया का ठप्पा भी बड़ा स्ट्रांग होता है. अब अगर मैंने बीकॉम की होती किसी कॉलेज से, तो और इवन इंजीनियरिंग फॉर दैट मैटर, लोग नहीं बोलते कि आप यही करो, बट बिकॉज लॉ की हुई थी, 5 year कोर्स था, तो लाइक कि आप बस लॉ
आप लॉयर ही हो। तो इवन इफ आई लाइक माई सेविंग्स वर रनिंग आउट एट दैट टाइम, क्योंकि स्टार्टअप भी नहीं चल रहा था, उधर से भी रेवेन्यू नहीं आ रहा था, इधर से भी सेविंग्स कम हो रही, तो आई ट्राई डूइंग फ्यू थिंग्स। वो लीगल कंसल्टेंसी या आपसे ले लेंगे, और कोई काम या और कुछ चीज़ में यू आर नोबडी। Got तो it. वो रीओरिएंटेशन करना, एंड देन आई हैड टू स्टॉप डूइंग द लीगल कंसल्टिंग एट दैट टाइम कि यार रिस्क लेना पड़ेगा। And then at that time, this I'm talking about 2011 types, I joined a startup accelerator. उन्होंने बोला कि यार आप दो चीज़ें नहीं कर सकते, आपको वो छोड़ना पड़ेगा और पूरा स्टार्टअप में घुसना पड़ेगा। तो मैंने वो किया, एंड देन slowly you get traction. I hired a CTO, Chief Tech Officer, which was also extremely difficult. अब आपको कुछ नहीं पता टेक के बारे में, आप कैसे उनको हायर करो, कैसे उनको I मोटिवेट know. करो। इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मेरे को याद है 2012 में मैंने कुछ 109 इंटरव्यूज़ की थी सिर्फ 1.5 महीने में। एंड फिर फाइनली आई फाउंड अ गाय हु स्टेड विद मी फॉर 9-10 years, ऑसम। बट वही मतलब लगे रहना पड़ता है थोड़ा, तो टफ बहुत था। मतलब आई यूज्ड टू बी इन अ स्मॉल बरसाती इन कालका जी, एंड वहीं से नीचे ऑफिस चलता था हमारा, ऊपर यू गो एंड स्टे। 12-13 हज़ार रुपये रेंट था, और somehow it was making ends meet and also trying to get traction for the startup. मैं Then एक क्वेश्चन हाँ पूछूंगी जी, यहाँ प्लीज पर। प्लीज। हाँ जी, So basically, I hear you. अब corporate lawyer होना is the right tick box जी जी that you landed जी yourself जी, in, right? And of course, like I heard you, you came from a middle class family. Expectations हैं कि भैया मेरा बेटा corporate lawyer करेक्ट बन करेक्ट चुका करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। तो what was going on also from the family side? Please tell us, because that's very important for us to know कि जब हम कुछ शिफ्ट करते हैं तो अगर सपोर्ट होती है तो कैसा फील होता है, नहीं होती तो हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? एंड besides whatever you were wanting to do, how did that really unfold with or without that support? नहीं बिल्कुल, देखिए मेरा मानना है कि बताना नहीं चाहिए, सीधा कर लेना चाहिए। तो आई क्विट माई जॉब, देन आई कॉल्ड माई डैड, आई सेड कि Oh, मैं चंडीगढ़ आ रहा हूँ आपके पास। तो अब दैट वाज लाइक अच्छा क्या हो गया? तो मैंने कहा मैंने तो आई क्विट। So now it's already done, and they couldn't do anything. I did not discuss with any friends. My wife, my girlfriend at that time, who's my wife now, she saw me getting very frustrated, while being in London and not being happy. And she then told me, "Bhai, you're making my life also hell. You please go. You have to do this. Just do it." And so yeah, and just to give you a small example, मतलब ना काफ़ी चीज़ें illogical भी होती हैं उस time. Like I was doing a program where in 2 years we would have become a solicitor and qualified in the UK. okay. अब कोई भी सेंसिबल बंदा होगा वो कहेगा यार अब, और मेरे को 1 साल 9 महीने हो गए थे। अब इट इज़ द मोस्ट सेंसिबल थिंग कि यार 3 महीने रुक जा, क्या हो गया, लंदन में रह रहा है, सॉलिसिटर बन जा, कभी काम आ जाएगी मतलब क्वालिफिकेशन। I know. बट आई वाज लाइक नो, मेरे मन में एक नंबर था कि आई हैव टू सेव। एट दैट टाइम 14 लाख वाज फॉर सम रीजन अ नंबर दैट आई कुड सर्वाइव फॉर 2.5 years इवन इफ आई डिडंट मेक एनी रेवेन्यू। जिस दिन मेरा 14 लाख हुआ मैंने क्विट किया, फिर Very पेरेंट को brave. फ़ोन किया। गर्लफ्रेंड एंड वाइफ सिमरन, शी वाज विद मी थ्रू आउट दैट। उसमें बस यही था रिस्क की, लॉन्ग डिस्टेंस करना पड़ेगा। वी वर स्टिल 2-3 years अवे फ्रॉम मैरिज, एंड फॉर बोथ ऑफ अस इट वाज अ टफ फेज। बट शी सेड यू आर मेकिंग माई लाइफ वर्स हियर, मैं लॉन्ग डिस्टेंस से लूँगी बट तेरी ये फ्रस्ट्रेशन और मैडनेस नहीं समझूंगी, Very तो good. जाओ वापस। So yeah, that is how it was. Parents, once they didn't have a choice, then they became a bit supportive. Okay. Yeah. So I want to ask you next question. कहाँ law, कहाँ tech? कोई combination ही नहीं है। नहीं, today बिल्कुल I बिल्कुल। would say ठीक है, there must be some like Yeah. a bit of AI and Correct, law correct, and correct, everything, correct, but tech, like उस टाइम तो था ही it नहीं। completely, like you said, Yeah. something like a Swiggy or a Myntra or Yeah, something yeah, was yeah. just about filtering in. Correct, correct. So how? See, basically, even when I was in school, तो चंडीगढ़ में ना मतलब एक्सपोजर बहुत कम था, और मतलब लाइक आई एम द ओनली गाय आई नो इन यार दोस्त रिश्तेदार हु यूज्ड टू रीड बुक्स एटसेट्रा। तो मैंने ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने का शौक था, एंड आई यूज्ड टू रीड ऑल दीज बिजनेस पीपल्स ऑटोबायोग्राफीज, एंड आई हैड दैट थिंग इन मी कि बिजनेस करना है। टेक वेक का उस टाइम, दिस इज 99-2000, नो सेंस ऑफ टेक, बट करना कुछ है। आई वाज वेरी फेमिलियर विद टेक, बट एज ओवर द नेक्स्ट डेकेड इट बिकेम वेरी ऑब्वियस कि व्हाटएवर बिजनेस यू डू हैज टू डू विद टेक। तो अगर आपको नहीं आती तो वो आपकी प्रॉब्लम है और आपको सीखना पड़ेगा। मतलब That's right. यू कांट चेंज द वर्ल्ड टू व्हाट यू फील कि अब मेरे को बिजनेस भी करना है, अच्छा भी हो, चले भी फास्ट, और मैं टेक भी ना हो। तो वो नहीं उस टाइम पॉसिबल था। सो So बड़ी what बुरी what हालत हुई। did you really do in tech? सो पहले क्या होता है, यू नीड अ बेबी स्टेप
फ्रॉम योर करंट फील्ड टू द नेक्स्ट फील्ड। तो मैंने यूएस में देखा कि कौन से लीगल टेक स्टार्टअप चल रहे हैं, और वहाँ पे एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मेकिंग काइंड ऑफ एक टेक स्टार्टअप था। तो मैंने कहा चलो ये एक बनाते हैं इंडिया के लिए। वो बनाया, बिल्कुल नहीं चला, मतलब 1.5-2 उस time साल, पे। मतलब बिल्कुल ही, इट वाज अ स्टूपिड आइडिया, बट यू डोंट नो इट एट दैट टाइम, यू गिव इट योर ऑल। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग छोटी सी कालका जी में ही, मेरे आसपास 9 इंटर्न बैठे थे, बिकॉज लाइक यू कुडंट अफोर्ड एंड दे वांटेड इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। Right. एंड तो मतलब आप करते हो वो सब, इवन इफ यू आर रनिंग वेरी हार्ड इन द रॉन्ग डायरेक्शन, यू हैव टू डू इट एंड देन काइंड ऑफ कम बैक एंड फिगर आउट। Right. Yeah. तो या टेक के लिए फिर मैंने कोडिंग की क्लासेस भी की कुछ, और कोडिंग की क्लासेस करके मेरे को समझ आया भाई ये नहीं हो पाएगा कि यू कांट स्टार्ट नाउ एंड बिकम अ गुड कोडर एंड कोड योर प्रोडक्ट, बिकॉज आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि आउटसोर्स करते थे तो बिल्कुल ही, मतलब ना आउटपुट बहुत ही गंदा होता था। यू कांट बिल्ड अ टेक कंपनी विद दैट क्वालिटी ऑफ कोड, और एआई वगैरह तो कुछ था नहीं तब। तो देन फाइनली आई डिसाइडेड कि नहीं, आप यू हैव टू गेट अ सीटीओ, एंड फॉर दैट यू हैव टू रियली वर्क हार्ड। एंड देन वी गॉट लकी कि हमारा एंजल इन्वेस्टर जो आए थे, उन्होंने फिर हमें सिकोया से कनेक्ट करवाया। सिकोया में जो मेन पार्टनर थे शैलेंद्र, उनके साथ बहुत बढ़िया मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि अंकुर, आई लाइक योर excitement, energy, we'll do something, even though it's a new and slightly weird idea, but I like you and it'll evolve. So once we got Sequoia in, it became a lot easier. Yeah. Like then hiring does become easier. देखिए Of सबको course. उनकी, वो भी बेचारे रिस्क ले रहे हैं आपके ऊपर, तो at least you can pay them more than survival salary with some equity. So we did all of that and thing became. But there have been moments where I have cried. Like, and मतलब हमारा थोड़ा ऐसे थे हम बेवकूफ टाइप की, हम बॉयज डोंट क्राई टाइप्स। तो लास्ट आई वुड हैव क्राइड इन 8th की किसी ने मारा, पापा ने कुछ किया होगा। उसके बाद आई हैव लिटरली क्राइड एज एन एडल्ट पर्सन एट 24-25 and nothing is working. Like, and once a guy who had just joined me 2 months earlier, randomly one day आके कहता है, यार आप बहुत intense हो, मैं नहीं यहाँ काम करना चाहता। At 24, 25, you were 24, 25. I was 24. He was also my And age. you were intense at that time. Yes, मतलब Because that's you the were so only way. focused. Yeah. और कोई तरीका नहीं है, कुछ Intense भी is very अच्छे। focused. हाँ, I mean it like that, not in any other way. वो कहता है यार मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। And after he left, I literally kind of broke down because he was my 6th or 7th, क्या कहते हैं, फाउंडिंग इंजीनियर बोलते हैं आप, कि मतलब जो पहला बंदा आता है, यू डोंट कॉल हिम अ सीटीओ बिकॉज यू डोंट नो हाउ मच दे विल ग्रो, इट्स नॉट अ सीएक्सओ पोजीशन लाइक दैट। Even though at 25 I was calling myself a CEO, but that kind of stupidity everybody does. But you get the point. तो बड़ी बुरी हालत थी, लेकिन एक बार फंडिंग आई तो उससे लाइफ became easier and we got traction So slowly. what was the tech about? So The tech then company about? so then the legal document thing didn't work, but हमने ना अपनी वेबसाइट पे एक बटन लगाया हुआ था to help you solve consumer complaints, and that we got a coverage in Rediff, that, and वहाँ से इतने लोग आए, सबने एक ही बटन पे क्लिक किया, and we were like wow, PMF, product market fit मिल गया, बाकी सब बंद करो, इसी पे फोकस करो। So we doubled down on that, and that we scaled reasonably well. So the idea there was that, look, people who are unhappy with the call center of a company usually will go online and talk negatively about the brand. What if we create this central, मतलब हमारी vision ये थी कि one toll number for all of India, for all companies, whether you're a bank or an Airtel or whatever. What if there was one place you could just call? At that time phone was a big deal, then let's say website and then an app. तो आप अगर वो करेंगे तो एक जगह से हम आपकी सब रेजोल्यूशन करवा देंगे। एंड वी वर वर्किंग विद अबाउट 200 कंपनीज के एस्केलेशन का मैट्रिक्स होता है, तो जो सीनियर मोस्ट ग्रीवियंस एड्रेसर वाले बंदे होते हैं उनके साथ टाई अप करके हमने किया, बहुत फाइट मारी, मतलब कुछ कभी नहीं छोड़ी हमने। Very unique, because I come from a loyalty background, you see. Yeah, so you can understand. I totally feel that this was so revolutionizing at that time. अच्छा था, लेकिन उसमें लिमिट्स थे। वो आइडिया वाज प्रोबेबली नॉट, इट डिड नॉट स्केल एज मच एज वी वांटेड टू। और वेंचर कैपिटल फंडेड स्टार्टअप में ये होता है कि यू हैव टू ग्रो बिग। तो उसके बिना, मतलब द प्ले इज दैट कि यू हैव कम हियर टू मेक अ लार्जर कंपनी। तो जब वो नहीं होता तो यू पिवट, मतलब थोड़ा उस टाइम पे नेगेटिव वर्ड होता था, अब तो लोग फिर भी उसे अच्छी तरह लेते हैं। बट यू पिवट ऑल्सो, आई वांट टू से वन थिंग अबाउट कि ना, जो बंदे के लिए
हो रहा होता है उसके लिए इतना पिवट नहीं फील होता, उसके लिए ग्रेजुअल होता है, बिकॉज आप रोज उठते हो, कुछ शावर में सोचते हो, कुछ रात को सोने से पहले कुछ बुरा लगता है, किसी ने कुछ और बोल दिया, दिल में आपको पता है कुछ नहीं चल रहा, तो वो स्लोली 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 एक मंथन होता है आपके दिमाग में, फिर जाके आपका वो सो कॉल्ड आउटसाइड से पिवट होता है। इतना रैंडम नहीं होता कि वन डे यू गेट अप एंड से कि मैं अब ये नहीं हूँ, ये हूँ। एंड आई थिंक फ्रॉम आउटसाइड इट फील्स लाइक दैट। तो मैं मतलब why I'm saying that is because you have to let that evolve and then maybe control the way you the narrative so to speak, कि ठीक है मतलब things will change। पहले मुझे बड़ा अजीब लगता था पीपल हु चेंज देयर माइंड। मेरा एक मेंटर था, वो उसे आज पूछो वो एक्स बोल देता था, 25-30 दिनों के बाद कुछ पूछो उसका वाई बोल देता था। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, मतलब व्हाई शुड आई लिसन टू हिज एडवाइस? एंड देन स्लोली आई रियलाइज कि व्हेन द डेटा इज चेंजिंग, ही इज चेंजिंग हिज थॉट प्रोसेस एंड एवरीथिंग इज डायनेमिक एंड आई थिंक दैट्स द थिंग दैट आई आल्सो अप्लाइड, कि कोई ऐसा नहीं है कि कहीं लिख के लिखा था कि यही करना है आपको, आप इवॉल्व करो। And that's how we evolved to a slightly bigger idea. Then वो भी फिर थोड़ा और evolve हुआ. Then finally we landed at Tabzo, which was working well, and So what is Tabzo, or what is what still was there? Tabzo? No, so that is the company we sold to Okay. Amazon. Okay. So like a founder's journey, अगर सब कुछ अच्छा होता है तो Zomato, Swiggy ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर ठीक ठीक होता है तो कुछ हमारे जैसा हो जाता है, और बहुत सारे होंगे, शट डाउन होता है, मतलब that's how the power law of startups is. So one has to be grateful for whatever one gets. Like also the part that you were doing what you loved for so many years as well, though it was very burning out types. But Tabzo was like a all-in-one app. तो उस टाइम हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि यार ऊबर ओला आप खोलते हो तो शाम को कभी ऊबर खोलते हो कभी ओला खोलते हो, बहुत ही पेनफुल है। Why can't they both be in one app and you can compare and choose which is nearer or cheaper? सेम विद जोमेटो स्विगी। अब रेस्टोरेंट के प्राइसेस उस टाइम जोमेटो स्विगी और फूड पांडा था, तो वी अगेन क्रिएटेड like an aggregator app, so you could compare quickly, like what a Make My Trip does for flights, like अब you can't go to Air India और सारे अलग अलग वेबसाइट पे usually, तो टेक का वही पॉइंट होता है to make things simpler। and then we said what if on you book a cab and then on the same app or on the same transaction you get a cashback and you can buy food with it or order a Zomato. So the idea was to do this all in one thing, और वो ठीक बढ़िया चल रहा था। हमने टीवी कैंपेन वगैरह किया, काफी कुछ किया। And TV campaign for this? Yeah. Oh, you had that kind of money? We had capital because we were funded by very good investors. They were very, I must say, very supportive because हमने गलतियां भी खूब की, मतलब, और गलतियों की पनिशमेंट भी मिलती है और मिलनी भी चाहिए, और दैट्स द वे कैपिटल ऑल्सो वर्क्स। तो बट हमें सपोर्ट भी काफ़ी मिली, और बट एक टाइम पे आके ये हो गया था कि having an app with so many different things happening, it was something that a Paytm was also trying to get towards, or was already like a payments app, but did flights, did this, did that, movie ticketing, उस टाइम काफ़ी कुछ वो लोग कर रहे थे। Similarly, Jio was also going in that direction. Google Pay was also going in that direction. So you have to survive with all these bigger giants. So that is when we had a conversation कि boss, this might take hundreds of millions of dollars. This is not anymore a very easy. So हम actually देखिए बेच कभी अगर आप if you go out to sell a company, you'll never be able to sell, right? That's the way the world works. If you want to sell, nobody wants to buy. If you don't want to sell, then probably people want to buy. So we first went out to say, look, we are looking for strategic investment. Ki, we realize that this is a big boys club now, and so you start conversations like that. Those conversations didn't go anywhere, by the way, and we said, okay, fine, now we have to find a way to break even. So we had to let go of some people. Again, terrible times, and you do all of the things required. Then randomly 6 months later, Amazon calls back. कि यार तुम लोग कोई मिलके गए थे हमारी इन्वेस्टमेंट्स टीम को, क्या चल रहा है, व्हाट आर यू गाइस बिल्डिंग? तो मैंने कहा यार मतलब अब जब हमने उम्मीद छोड़ दी थी और हम ब्रेक इवन करने की कोशिश कर रहे हैं, अब आपका फोन आ गया। बट मतलब कौन करता है। देन वी मेट एंड देन वी एक्सप्लेन टू देम, एंड वी हैड डन अगेन, मतलब मेहनत पूरी की थी और चीज़ अच्छी बनाई थी, और वो लोग यूज़ भी करते थे। तो दैट इज़ ईजी ना कि अच्छा इन्होंने ऐसे छोटे ऑप्टिमाइजेशंस होती हैं जो अच्छी की हुई थी हमने। सो दैट हैपेंड, दैट डील टुक अबाउट 8-10 months to crack, about 8 months. एंड Amazon इज़ अ ग्रेट प्लेस। मतलब मैंने कभी टेक कंपनी में काम नहीं किया था, आई हैड ओनली वर्कड इन अ लॉ फर्म। तो एंड Amazon का
culture is quite amazing that Amazon के ना 14 leadership principles हैं which Bezos wrote down, and I used to read his annual letter also every year. Really, like, business wisdom, really one of the best things you can read, maybe Yeah. apart from Which Warren is true. Buffett's letters. So when we went into Amazon, it was so interesting. They had taken the leadership principles and they evaluate people against them, and that's the way they've been able Oh. to make sure. अब जैसे That's interesting. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज फ्रॉम आउटसाइड एज अ फाउंडर हम भी कहते थे यार वैल्यूज मिशन ये है, बट हाउ डू यू एक्चुअली डू इट? बिकॉज people don't want to be evaluated on a leadership principle like he builds trust. Now he builds trust. अब मेरे को पता नहीं यार, you are a good person, you're a good leader, good manager, people love you, but are you really being evaluated on a metric called builds trust? And then somebody can say yes, but you can improve like this. Or there was a very interesting leadership principle called is right a lot. Means कि the manager or the leader is right, he has good judgment. And मैंने कहा यार ये क्या बात हुई? But मतलब who आपने evaluates this? so basically it's like a peer evaluation. So your person above, person मतलब your peers, they all write कि ये बंदा इस lead. So उसमें ऐसा होता है कि which of the 14 leadership principles does this person exhibit the most? Which are the ones which they exhibit the least? Which is kind of your signal to. Got it. But and very interesting that some leadership principles are more important at different at various different levels. points, हाँ. So our right a lot is very important as you become senior. कि यार आपकी judgment होनी चाहिए. I don't care कैसे right हुए, lucky भी हो सकते हो, but you have to be good. मतलब you have to be right. Got it. And then there are smaller things like details oriented, etc. That might be slightly. But I was like यार मतलब ऐसे ही नहीं हुआ, मतलब they have really applied their mind. So there were a lot of good things like that to pick up. But a founder's life is still a very different life. आप अपनी ship चला रहे होते हो और you're not used to the level of ultimately it's a very large company. See, at that time अभी पता नहीं 5 lakh people globally, इंडिया में ही 80,000 लोग थे. एंड पहले आप बड़े जोश से जाते हो एक्विजिशन के बाद कि हम ये बदल देंगे, इनको ना ये करना चाहिए, हम बताते हैं ऐसे होगा. आफ्टर 6-8 months you realize it's like an elephant, you can't really do too much, so you pick up what you like and you do that. तो वो किया. This was in 2018. 2018-19 में एक वो आने लग गया था यार कि there has to be more to life now. burnt out तो था ही मैं, तो वो थोड़ा पीरियड कम हुआ. और And by this time did you get married or? Sorry ma'am, I should have said earlier, I got married in 2012. Oh. So I married thankfully because I could not take the risk of my wife. So the long distance, like you had long to distance was 2.5 years. 2009 से 2012 तक. She came in 2011 sometime. वहाँ पे भी बड़ी अच्छी story है. I was very lucky because I think her parents found comfort that we both were together at law school. We were in the same batch. So एक level पे होता है कि random तो नहीं है. I have a daughter, so I can understand the father's perspective. It's not easy to give your and I love my in-laws and but ना उस टाइम अंडरस्टैंडिंग इतनी कम होती थी. मेरे मदर इन लोगों को पूछता था क्या करते हैं जी अंकुर, तो कहते हैं वो कंप्यूटर्स में है. तो क्योंकि स्टार्टअप्स भी नहीं अभी समझ आए थे. मतलब 2014-15 में मोदी जी ने वो किया था स्टार्टअप डे, तब जाके थोड़ा आई स्टिल रिमेंबर कि घर वालों ने देखा कि अब लोगों को समझ आ रहा है स्टार्टअप क्या होता है. बिकॉज दैट इज 11 years ago. वी इट्स डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हाट इट वाज लाइक बैक देन. हमारे लिए तो ऑब्वियस था, बट नॉर्मली सोसाइटी के लिए. But yeah, they were quite nice to give away their daughter to somebody who was making like 10,000, 20,000 rupees salary from his own savings only. हर महीने निकाल के खर्च देते थे. And then she's run the house throughout, even after my exit. She says कि I don't want your money, I don't care for it, and I want full control of whatever is being done and spent. I don't want to tell you. I like her. I already love her. तो हमने भी कहा भाई ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है आप करो. एंड ऑब्वियसली मतलब इतनी बार सैलरी बढ़ा के फिर सैलरी कट ले लिए, फिर मतलब हमारी भी हरकतें और काम और स्टेबिलिटी काफ़ी मतलब इट वाजंट दैट ग्रेट. सो इट वाज अ वेरी बिग डील टू हैव अ रॉक लाइक दैट. Okay, so tell me, you've been like, what I hear is it's always been rocky for you. It's never been like, correct, where you said, oh my goodness, this is where I've arrived. Correct. And I think I hear you also when you said, okay, you were going through a burnout and also finding a bigger purpose, I can say, or bigger meaning. Yeah. And that's what I define as second act. Yeah. And I know that there's a journey to get there, and that journey is never easy. Yeah. And I'm sure it's not settling even now. Yeah. So, as they say that if
you find this in this lifetime. Yeah. You know, the Yeah. many pivots that one can do. Correct. It's really squeezing life to the fullest. बिल्कुल. And like hearing you, I also hear a lot of grief, lot of hard realities or Yeah. going down or Correct. whatever. So do you think this is really a good life, or you would want to go back and say, no, I really want a settled life? No, not at all. ये तो बहुत ही like for me it is very clear. This is the way. Like ये इससे ज़्यादा और क्या आप you can't ask for more. Touch wood, we've been very lucky and very grateful. ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है. मतलब ये there is not even a second thought on this. लोग तरस जाते हैं अपने दिल की तमन्नाएं पूरी करने के लिए. हमने तो स्टार्टअप से लेके फिल्मों तक दोनों में जो मन किया वो किया. So cut to 2018 when you were thinking. Correct. Then what happened? See, 2018 में पहले 6-8 महीने तो Amazon में लगा यार, मतलब and I was genuinely in love with business. कुछ ऐसा नहीं था. There was not even a little bit of lack of commitment or thing. तो but slowly Amazon lost its charm and मेरे को था कुछ और करना है. I started writing down, like एक तरह से प्रिंसिपल्स कह लो कि यार मैंने क्या सीखा, क्या क्या गलतियाँ की और क्या मुझे अब नहीं चाहिए अपनी लाइफ में. सो सिंपल थिंग्स लाइक यार आई वांट टू वर्क विद पीपल who are X, let's say, or work with people whose incentives are fully aligned for the rest of my life. मतलब मान लो ऐसे कि यार I'm solving for the rest of my life. I'm 38, whatever age I'm alive and I'll be working, I know that. But ऐसे काम करो कि यार आप ये सब ना हो. मतलब एक क्योंकि ना जब कंपनी बिकती है तो एक सारी टीम भी बिखर जाती है. All of them joined Amazon and then some of them left and all. So it's a little bit of a churn from relationship perspective also. I wanted to have good health. I wanted to have a good family life and be a good role model for my children. There was also a concern in terms of children being growing up in a place of privilege, और उनको मैं किस तरह अपना lifestyle भी कुछ ऐसा रखूं कि मतलब they are also. तो मैंने लिखी ये सारी चीज़ें कि what is it that you now want. Now you have time to think. Job is not very intense. तो the more I wrote, the more I felt like कि okay, I need to explore other things. So typically सबसे पहले the things that suggest themselves are adjacent. तो जैसे value investing, I used to read a lot of Charlie Munger. He's a Warren Buffett's partner, was Warren Buffett's partner. और उनकी बातें मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी. They used to resonate with me. So I thought he used to pick companies to invest in. So I thought that might be a good life. तो मैंने अब कोई भी चीज़ करते हो तो आपको ये कि करनी अच्छी तरह है, तो उसके लिए सीखना पड़ेगा. तो मैंने जाके फिर फ्लेम्स करके एक पुणे में इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे जाके मैंने कोर्स किया 3-4 दिन का. वहाँ पे सारे बॉम्बे के ब्रोकर्स ये सब आए हुए थे. आई वाज दिस रैंडम गाय हु जस्ट सोल्ड अ कंपनी, नो क्लू अबाउट. What is this course in investing? Yes, into how to read a balance sheet, how to look at a company, how to read the earnings reports, वो मतलब सारी चीज़ें. और 3 दिन में आप ठीक है, the idea is to get introduced and to know. वरना तो देखिए लर्निंग आज एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि ऑनलाइन प्लस AI plus everything is available. But you still need to be around people. I went there and I felt like बड़ी interesting चीज़ कि the level of distrust that the investors have towards promoters is something that I will never be capable of. Because I have been a founder myself / promoter and मेरी empathy हमेशा उस तरफ चले जाते हैं कि नहीं यार बंदा फाइट मार रहा है, बहुत मुश्किल है बिजनेस चलाना, तो बुरा वक्त चल रहा है तो क्या हो गया, आई विल इन्वेस्ट एंड इट विल डू वेल. And that is the most stupid thing because you have to be a cynical person when you're investing. You have to get rid of all emotions. Like मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि इतनी ज़्यादा antipathy कह लो या जो भी कह लो, मतलब there was and you understand also now because they are not invested, they're buying a stock at a certain price, they expect it to go up and they'll sell it at that time. So unlike the Buffetts of the world who are saying we are buying a business forever, mostly 99.99% of the stock market is not doing that. They're looking for returns and their way of looking at it is very different. So I realized कि मेरे बस की तो ये नहीं है, apart from also not enjoying reading balance sheets. वो काफ़ी मुश्किल और थोड़ा मेरे लिए boring था, तो वो नहीं हुआ. Then I another thing was like my wife is a lawyers को ना थोड़ा writing की तरफ थोड़ा वैसी थोड़ा सा inclination होता है.
तो स्टैनफोर्ड का एक रिमोट कोर्स था 20-25 हज़ार का, तो आई डिड दैट रिमोटली ऑन नॉन फिक्शन राइटिंग. सो व्हाट दे डू इज दे गिव यू the best non-fiction writing across the world, and which is like you have to read this and then you have to write stuff, and that was also very interesting. But I realized ki you are going towards either writing non-fiction books or, let's say, becoming, I know it sounds very arrogant and stupid, but journalist of who could write stories or do reportage of a longer format. But मतलब But I love your learning curve. मेरे को तो लगता है कर सकते हो आप, मतलब I आप could be कितना wrong. कुछ मतलब see you had it in you like Yeah, I literally like from one to the other you haven't stopped. हाँ जी, मतलब मेरे को ये था कि करो, फाइट मारो, हो सकता है. मतलब इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स कि यू कैन लर्न एनीथिंग एक्सेप्ट मे बी लाइक रियल हार्ड साइंसेस माइट बी डिफिकल्ट अब फॉर मी वेयर आई एम टुडे, बट मुझे लगता है उस पर भी अगर फाइट मारो शायद सीख सकते हो. बट एनीवे, सो ये किया. इसके अंदर भी फिर मेरे को ये लगा यार यू नीड द लेवल ऑफ, लाइक आई पिक्ड आउट 2-3 स्टोरीज इन कॉर्पोरेट इंडिया which I thought were genuinely interesting. Like for example, you know, you read about how you know, in the 80s, Mr. Tata's career and the battles he fought to become the man he became, so that he was chosen in 1991 or 92 over Rasi Modi, if I'm pronouncing these names correctly. बड़ी इंटरेस्टिंग अच्छी चीज़ें हैं लिखने वाली, और मेरे को ये था कि मेरी बिजनेस की समझ भी है, लिखने सीखेंगे और कुछ लिखेंगे अच्छा, और फिर कुछ अच्छा होगा. बट दैट ऑल्सो I didn't. And then one day, like I was telling you earlier, my wife एक cinematography की क्लास हो रही थी, तो कहती जाओ. मैं चंडीगढ़ से आया था. कल्चर थोड़ा 2001 में तो हमें वैसे ही नहीं पता था, हमारा बस एक मिडिल क्लास नीड था. तो हमने कभी कोई फॉरेन फिल्में नहीं देखी थी. जी सिनेमा पे पले बड़े थे हम. अब कॉलेज आप आते हो, थोड़ा एलीट कॉलेज है, थोड़ा आप भी मतलब आपकी अपने इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो आप भी थोड़ा हाई आर्ट हाई कल्चर में इन्वॉल्व होना चाहते हो. एंड द ईजिएस्ट वन इज़ टू वॉच फ्रेंच न्यू वेव और इटालियन न्यू रियलिज्म, वॉट एवर, यू नो, दीज फिल्म्स. तो वो खूब देखी. और कई बार तो ऐसा होता था स्क्रीनिंग में सिर्फ हम 4 फिल्म क्लब के मेंबर ही बैठे हैं, कोई नहीं आता था, बिकॉज यू नो अल्टीमेटली नोबडी केयर्स. फिर हमने एक बार अमिताभ बच्चन वीक किया, वो पूरा फुल था हमारा. फिल्म क्लब वाज अ सक्सेस फॉर अ वीक. देन वी वेंट बैक टू हैविंग वेरी लिटिल अटेंडेंस. बट आई हैड सीन ऑल द वर्ल्ड सिनेमा, वो जो एक 6 महीने का फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स होता है FTI में, जहाँ तक मेरे को मालूम है लिमिटेड, तो उसका लेवल हमने 2-3 सालों में अच्छी तरह शिद्दत से प्यार से फिल्में देख के, फिर ट्रिविया पढ़ो, फिर फिल्मों पे बुक्स पढ़ो, वो सब किया हुआ था. एंड माय वाइफ न्यू दैट अबाउट मी, सो शी सेंड मी फॉर अ सिनेमाटोग्राफी कोर्स. मैंने कहा यार ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है यार. और उसने बताया कि सेट ऐसे चलता है, प्रेपरेशन ऐसे होती है. ही हैड बीन अ DOP ऑन अ अमेरिकन शो, लाइक अ TV series, एंड वेरी इंटेंस, वेरी टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क, एंड इट इज़ वेरी चैलेंजिंग. तो वो फिर लेंसेज के बारे में समझाने लगा. मैंने कहा यार ये भी इंटरेस्टिंग है, मतलब व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन 50 mm एंड यू नो 18 mm और 20 mm. तो मैंने कहा ठीक है, कुछ है इसमें जो रेजोनेट कर रहा है. तो फिर मैंने और कोर्सेज ढूंढे. मुझे एक वीकेंड कोर्स मिला, एक इंस्टीट्यूट ऑफ मूविंग इमेजेस है, पंकज सर हैं वो पढ़ाते हैं. वो मेरी लाइफ के पहले टीचर हैं जिनकी मैं बहुत मतलब आई रियली लव्ड हिम, बिकॉज पहली बार मैं ऐसा चीज़ पढ़ रहा था जो मुझे बहुत इंटरेस्ट था, और वो भी बहुत पैशनेट. मतलब वो आते थे 2 बजे सैटरडे को, रात को 10 बजे तक क्लास चलती थी नॉन स्टॉप. मतलब आपने बीच में 5 मिनट के लिए चाय के लिए ब्रेक किया. बट दीज आर ऑल मिसफिट्स, रैंडम मिडिल एज पीपल हु वर ट्राइंग टू लर्न सिनेमा एंड विद जॉब्स. You see, they couldn't go to an FTI or not crack it or not go because वो आप you will do it after college. But these are all people who were just interested in cinema, और कहीं ना कहीं एक कीड़ा था. और मेरे को लगता है कोविड के बाद उसकी पॉपुलेशन भी बढ़ गई थी कि people saying कि नहीं, मन है तो सीख लो. Finding a better meaning to your what you want to do. बिल्कुल. तो वो किया, बड़ा मज़ा आया. और वहाँ पे ना वो इट्स लाइक अ क्रैश कोर्स. जैसे वो थोड़ा पहले आपको बोलते हैं 1 मिनट की 90 सेकंड की फिल्म बनाओ विदाउट एनी कट. सो इट्स अ सिंगल शॉट, कुछ हो रहा है उसमें, आप वो बनाते हो. सेकंड असाइनमेंट मिलती है कि आप 3 मिनट की फिल्म बनाओ जिसमें 90 कट्स होंगे, सो दैट यू लर्न कंटिन्यूटी एडिटिंग. सो आई वेंट टू a blue tokai or a third wave, and I pictured coffee being made, and I had to cut in a way that it feels continuous without a jerk, no jump cuts. तो वो किया. फिर 5 मिनट की फिल्म, फिर 20 मिनट की फिल्म. तो अब वो 2-2.5 महीने में उन्होंने ना, मतलब पूरा फटाफट जो होता है कि भाई 2 महीने में सीख लो आप.
तो वो सीखा एंड देन सर ने मेरे को एक बड़ी अच्छी बात बोली कि देखिए सिनेमा में एज ए डायरेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो 3 मेन चीज़ें हैं, राइटिंग, सिनेमाटोग्राफी एंड एडिटिंग. You have to be really kick-ass in one of the 3 at least. And then you have the right to also be a director, and the toughest by far is writing. तो मैंने कहा फिर समझ आ गया कि क्योंकि ये भी था कि देखो हाफ द स्टफ आई वॉच वेरी लिमिटेड स्टफ, वो काफ़ी चीज़ें पसंद भी नहीं आती, टेस्ट भी थोड़े कह लो नॉट द मास टेस्ट, आई डोंट हैव दैट, तो वाई लाई टू योर सेल्फ. तो मैंने कहा चलो राइटिंग को पकड़ते हैं, और राइटिंग को पकड़ा तो फिर से ऐसा लगा कि बहुत ही मुश्किल चीज़ पकड़ ली. फर्स्ट 2-3 स्क्रिप्ट्स वर सो बैड एंड सो कंट्राइव्ड. who decided whether क्या it was bad, it wasn't वो up पता to चलता है आपके दिल में ही, आपको पता होता है, आप पढ़ाते हो थोड़ा, यू नो, इट्स अ वेरी पर्सनल फील्ड. बाय द वे दैट्स वन वेरी बिग डिफरेंस. यहाँ पे सब कुछ आप बहुत पर्सनली लेते हो. स्टार्टअप में कोई फीडबैक देता था ना, अरे बहुत बढ़िया यार, वी कैन इंप्रूव द ऐप, यू कॉल अप योर प्रोडक्ट मैनेजर, भाई इसमें ना ये करना है, ये करवाओ, ये इट मेक सेंस, लेट्स डू द एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे कोई कुछ बोलता है तो ऐसा यहाँ सीधा लगता है कि यार एम आई नॉट गुड इनफ, डू आई नॉट हैव द टैलेंट, एंड वो ये ना, मतलब ऑल्सो इट्स अ सेकंड एक्ट, तो इट्स नॉट अ जोक कि आप कह रहे हो कि नहीं. तो बहुत टफ था. और दूसरा, मैं जो आपको पहले भी बात बता रहा था, आप यू आर अ नोबडी, मतलब दैट यू हैव टू रियलाइज कि नए फील्ड में आके आप वही 23 साल के नौजवान की तरह हो, और बड़ा मुश्किल होता है वो सेकंड हैंड में होना ना, क्योंकि आपने ईगो, इंटाइटलमेंट सब रियल है, और थोड़ा रिसोर्सेज, थोड़ा आपका, वी अल्टीमेटली फ्रॉम सोसाइटल परस्पेक्टिव वी आर एलीट एज वेल, बाय यू नो नॉट बाय चॉइस बट बाय व्हाटएवर जो भी आउटकम्स रहे काम के. तो उसमें आपकी मतलब पूरी रेल बन जाती है कि भाई कुछ नहीं हो आप, मतलब आपको अगर ये यही करना है तो यू हैव टू पे योर ड्यूज. सो what I have realized is that I'm jumping, but what I have realized is that कि 4-5 साल कहीं नहीं गए if you have to do a shift, right? And I'm talking about a hard pivot. So the lesser amount of time. So if you go from, it's how much serious are you to really wanting to make this life? देखिए वो तो मैं कहूँगा होना ही, मतलब दैट आई टेक फॉर ग्रांटेड कि करना ही है. मैं तो कह रहा हूँ अगर आप सीरियस भी हो तो भी, अगर हार्ड पिवट है तो 3-4 साल कहीं नहीं गए. अगर थोड़ा सा मतलब एडजेसेंट है तो कम, मतलब आप उसको कम कर, बिकॉज आई थिंक द चैलेंज इज कि आपको, मतलब इट इज काउंटर इंट्यूटिव हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी, एंड हाउ मच लाइक बैड टाइम्स यू गो थ्रू कि एम आई डूइंग द राइट थिंग. मतलब कौन करता है ये, हु डज दिस काइंड ऑफ स्टूपिड काइंड ऑफ यू नो मूव, and it's not Actually, logical. the thing is that society ने भी ना कितना कुछ बना दिया है कि ये stupid है, ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं होता, this is putting yourself to failure, ये तो ऐसा होगा ही नहीं, and that's what gets into your brain, and then you start feeling small to hard shifts. You feel, oh, you know, I just knew it. बिकॉज सब बोलते थे, अभी तो यू नो इट इज. और ना ये बहुत होता है. सो वन इज फेलियर भी होता है. दूसरा, बड़े सारे टाइम आपको लगता है एक मेरे वहाँ पिछले इतने सारे लोग जानते थे वो काम आएंगे, कोई काम नहीं आता है ना, तो तब बहुत चुभता है. I just wrote a LinkedIn article on this. Oh, ma'am, sorry, I'm not. I'm just saying that I just wrote that, you know, when you start something, you feel that, you know, oh, my older cousin, if I go out to, or even your near cousins or relatives or your friends, your ex-colleagues, or somebody, you'll go and they'll feel very excited. In fact, on the other side, it's about like this, I don't think will work. That is not, how could you even think like, you know, this will take off? इसमें तूने ये ठीक नहीं किया, उसमें तूने वो ठीक नहीं. You start feeling, yeah, these are my closest people, right? So I know what you're saying. ये तो बहुत टफ है. और बड़ों से तो फिर ना बातें होनी कम हो जाती हैं, आपके फ्रेंड सर्कल थोड़ा चेंज हो जाता है. मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यू हैव टू बी ओके विद ऑल ऑफ दैट एंड से कि नहीं, मतलब आप अपना पाथ पे चल रहे हैं सेकंड एक्ट में, तो यू हैव टू बी ओके विद इट. आई हैव फेस्ड इट इन अ वे ट्वाइस दैट पहले जब लॉ से स्टार्टअप किया तो लॉ वाले दोस्त काफ़ी छूटे, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट टू कनेक्ट आफ्टर अ पॉइंट. मतलब आप बिल्कुल ये ऐसे 180 डिग्री अलग ही उल्टी बात कर रहे हो आप. Then the same thing with filmmaking, right? Because as a founder, even I wouldn't get यार क्या है ये, मतलब why is anybody getting into filmmaking, and nobody has that background कि अरे लॉ स्कूल में फिल्म क्लब चलाया था, फिल्म के प्रति प्यार है. मेरे तो स्टार्टअप में भी जो मैं बरसाती में गया था वहाँ पे भी फिल्म के पोस्टर्स पड़े हुए थे, लाइक टैक्सी ड्राइवर का पोस्टर लगा हुआ था. जस्ट जनरली यू नो, मतलब यू हैव अ सेंस, लाइक यू हैव अ सेंसिबिलिटी, सो यू जस्ट पुट समथिंग ऑन द वॉल. तो वो सबके लिए नहीं है. सो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द हेल आर यू लीविंग एवरीथिंग एंड गोइंग इनटू दैट.
but you have to be okay, you have to reduce, and you have to change your circle to people who are also beginners in that field in some sense. I'm just extrapolating from my personal No. experience. So great. So I want to now come to, of course, why we are meeting today, because your movie is releasing, and very congratulations. Thank you so much. I know that it is not easy. It's not even like I can say that it'll get any better. It is only a tough journey, and you have really like stepped into something which, you know, everybody wants in some way to either get more visibility in life, कि उनके काम के लिए मिले या उनको मिले या उनके हुनर को मिले. And I think this is the space, right? Because everything is like a showcase here. So tell me about, of course you said कि पहले बहुत गंदी scripts लिखी, and finally this थोड़ी सी जो अच्छी script लिखी. So talk about that and the movie that finally you made. So the movie is called Gitch Pitch. It is coming in cinemas on 8th of August. The film is about father and son's relationships, and तीन लड़कों की कहानी है. 2001 में एक में सेट है. So I followed the two most ये मीरा नायर मैम का एक कोर्स है मास्टर क्लास पे. By the way, that's another thing, you know, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आप पढ़ के सीखें. That's the person you want to be listening to in your heart, because whatever they are saying is what is resonating. तो यारों दोस्तों फैमिलियों को छोड़ के आपको अब किसी स्ट्रेंजर से दोस्ती करनी पड़ती है कि उनकी बात मेरे जहन में मेरे को, you know, the tuning is there. तो उन्होंने बड़ी प्यारी दो बातें सिंपल सी बोली. Write what you know, which is a very standard advice, or rather she said, if you don't tell your story, who will? That I thought was a very simple, easy, good piece of advice. And the second thing that she said, which is the overlapping... Getting goosebumps. Okay, just listening to it. Thank you. So the second thing she said, वो भी बहुत अच्छी बात थी. वो कहते कि why are you the best person to tell this story? तो कहते आप ये दो क्राइटेरिया हर चीज़ पे जज करो. अगर एक भी नहीं मिलता तो रहने दो. मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है और इतनी सिंपल है. तो अब बॉलीवुड में कोई बहुत बढ़िया फिल्म बनाता है, लोग इतना प्यार देते हैं, उसका 500,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है, वो बॉक्स ऑफिस आता है, तो कुछ तो बनाया होगा जो लोगों को अच्छा लग रहा है. बट इट डज नॉट मीट द सेकंड क्राइटेरिया. यार वो वाली फिल्म ना वही डायरेक्टर सर बना सकते हैं, हमारे बस की नहीं है क्योंकि हमसे नहीं बनेगी वो. तो दैट कट्स आउट सो मेनी थिंग्स. एंड यू नो, टेल योर स्टोरी. इफ यू डोंट, हु विल? दैट मेक्स यू राइट वॉट यू नो, विच इज द मोर सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ सेइंग दैट, बट रेजोनेट्स इन अ बेटर वे. तो मैंने कहा यार, एंड आई एनीवे वाज अ बिग फैन ऑफ हर, बिकॉज मैंने मॉनसून वेडिंग देखी थी खुद 17 साल की उम्र में एक थिएटर में, एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब क्या फिल्म बनाई है मैम ने. तो या, सो एसेंशियली दैट दोज 2-3 थिंग्स केम टुगेदर, एंड आई थॉट कि ठीक है, यू राइट समथिंग वेयर इट्स फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस. 2001 में इसलिए सेट की कि यार आई नो वॉट इट इज़ टू बी अ 17-year-old रिबेलिंग इन 2001. आज का मैं लिखूंगा, आई मे नॉट इवन बी एबल टू राइट इट बिकॉज आई डोंट नो वॉट इट इज़ टू बी दैट पर्सन. तो वहाँ से लिखनी शुरू की, एंड आई वॉज ओल्डर, सो थोड़ा फादर का पर्सपेक्टिव भी अब मेरे को समझ आता है कि यार इट इज़ टफ टू बी अ पेरेंट, एंड पेरेंट्स की अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं. तो उन सबको लेके फर्स्ट आई रोट अ स्क्रिप्ट विच वॉज वेरी एनेक्डोटल, विच इज़ अ वेरी बैड वे ऑफ राइटिंग अ स्क्रिप्ट, बट एटलीस्ट आपका मटेरियल आ गया. आपने एक कह लो मिट्टी इकट्ठी कर ली अलग अलग तरह की कि ये होगा ऐसा कुछ. फिर 1 साल के लिए मैंने उसे लिख के साइड पे छोड़ दिया. मैंने कहा यार ये भी कुछ खास नहीं है, और कुछ लिखे और गंदे स्क्रिप्ट लिखे. लेकिन फिर एक दिन मैंने एक दोस्त को ये पढ़वाया दिल्ली में, ही इज़ अ राइटर, यंग गाय. नाउ आई एम ओनली सराउंडेड बाय यंग पीपल. बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है. तो he is 26. He read it. He said, यार I really liked it और I can relate to it totally. मैंने कहा यार ये तो मतलब हम 2001 की बात करेंगे. अरे नहीं यार, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं बदला है. बच्चों का आज भी वही प्रॉब्लम है, डैडी इश्यूज किसको नहीं है. आई लाइक दिस, आप इस पे काम करो. मैंने कहा भाई अब तो कह ही रहा है तो कैन यू ऑल्सो काइंड ऑफ हेल्प अ लिटिल बिट. सो I started brainstorming with him, because writing I think becomes better when you have 1 or 2 people to vibe with. And then another person from law school who's a junior of mine, he also started helping a little bit. तो फिर हमारी रीराइटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एंड वी टुक अ ईयर टू डू अबाउट 30-40 रीराइट्स. और बड़ी वो मतलब दे वर जस्ट पोकिंग होल्स. फिर मैं वापस जाता था, लिखता था दोबारा सीन. तो बहुत बड़ी सारी चीज़ें चेंज हुई. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू राइट अबाउट 3 कैरेक्टर्स, दे शुड ऑल साउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. देयर पर्सनैलिटीज शुड बी डिफरेंट. तो मेरी कुछ चीज़ें इसमें डली, कुछ चीज़ें इसमें डली, कुछ इसमें डली. देन सिमिलरली पेरेंट्स का, अब मैंने तो एक ही फादर देखे हैं, बट मेरे को दूसरों के फादर इमेजिन करने, और दे शुड बी स्टार्कली डिफरेंट ऑल्सो, सो दैट यू गेट फ्लेवर्स ऑफ ऑल द फादर्स कैसे होते हैं.
तो बड़ा अच्छा था, बड़ा टफ था, और बड़ी रिस्पेक्ट रही कि यार मतलब राइटर्स दे आर द ओरिजिनल क्रिएटर्स इन दिस फील्ड, आई फील. उसके बाद ऑब्वियसली डायरेक्टिंग एंड एक्टर्स एंड देन एडिटिंग, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. देखिए कुछ भी होता सबके कॉम्बिनेशन से, बट राइटिंग वॉज वेरी डिफिकल्ट. Okay, so tell me firstly the title of the movie. Why Gitch Pitch? Gitch pitch is like a colloquial term. हम हमारे टाइम तो बहुत यूज करते थे कि it's very सब कुछ घिच पिच हो गया. It's like the mind is in a state of disarray and मैं बोलना नहीं चाहता, बट you can understand basically. तो कोविड में लिखा था तो खुद का ब्रेन भी वैसा था. आई वॉज गोइंग थ्रू अ बैड मेंटल, मतलब काइंड ऑफ, आई डोंट यूज वर्ड्स लाइक डिप्रेशन की, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि क्या था वो, बट इट वॉज अ पीरियड ऑफ फंक. तो वो दिमाग की स्टेट भी थी और स्क्रिप्ट भी थोड़ा वैसा था, बिकॉज इट्स लाइक 3 people stories without, at that time there was no strong theme also, so it was basically like I said, an anecdotal thing. So I could not give it like a singular theme, so then I kind of just said that it is called Gitch Pitch. फिर हमने बड़ी कोशिश की उसका नाम बदलने की, तो लोगों से पूछा फिर अल्टीमेटली इट स्टक. तो वी डिड अ पोल आल्सो कि अच्छा ये 3 नेम हमने सजेस्ट किए, बट लोग कहते हैं ठीक है, Gitch Pitch is at least it stands out and it's something different, and now that people who are seeing it, they are saying the name is appropriate to the film. So you're the writer, you're the director, you're the producer. Yes. And you are the? बस इतने ही. Okay, so okay, like you said, कि writing is a huge part of it, जी. and that is a piece in itself. जी. So how did you learn direction? How did you learn? I mean, producer तो मुझे नहीं पता कि उसमें तो सिर्फ पैसा, बहुत सारा पैसा लगा दो. Correct. But how did you know actor से लेकर कौन fit बैठेगा, फिर उनको डायरेक्ट कैसे करना है, वो क्या ठीक बोल रहे हैं, उनका जो कॉस्ट्यूम है, like is that fitting, the scene of like where they are staying is fitting, the way they're talking. How did you do all of that? काफी टफ है, मतलब they say in the film course, they say you have to be a good observer, right? तो एज अ डायरेक्टर की क्या खूबी होनी चाहिए कि वो ऑब्जर्व करते हैं, वो देखते हैं कि आपने क्या पहना हुआ था, आपने बात कैसे की, you belong to a certain section of society, how do you conduct yourself, and those are the things that come into your writing and your directing and all. अब हमें तो आता नहीं था ये सब, क्योंकि इन अ स्टार्टअप आपका दिमाग आगे ही है, बस आप यूर इन योर ब्रेन ओनली, आगे चल रहा है. तो being present became a very difficult but important thing. So one, the second thing ना that was there is that इस फील्ड में ना कोई आपके काम की वेट नहीं कर रहा है. Nobody is waiting for your film to come out. You have time, and if you have time, then give it enough time so that it is actually good, and you spend your time learning, right? To be able to be good at those things. And the third thing is I practiced a lot. तो जैसे हमने कहा कि चलो ये शॉर्ट फिल्म बनानी है, एक रात में बनानी है, और इसका ये स्क्रिप्ट है, तो आप लिखो और पूरा एक साइकिल कंप्लीट करो कि उसको एडिट भी करेंगे अच्छी तरह, बैकग्राउंड स्कोर भी देंगे, ये भी देंगे, और फटाफट मिस्टेक्स पता लगने लग जाती हैं. मैं आपको बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल है, बट एज अ डायरेक्टर इट मैटर्स. जैसे मैंने एक वर्कशॉप की ऐसे ही कि यार एक गाड़ी में सीन है लड़कों का, वो रात को गेड़ी मार रहे हैं, बाप की गाड़ी ले गए और गेड़ी मार रहे हैं, टिपिकल सीन. अब हमने कैमरा लगाया बाहर बोनेट पे, ऐसे रिग लगा के, थोड़ा खुश हो गए कि चलो रिग लगा रहे हैं, ये है वो है, शूट किया, एडिट पे बैठे, यार मज़ा नहीं आ रहा, समथिंग इज रॉन्ग. एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज दैट because you put the camera outside the windshield, somewhere you can't connect with the emotions of the characters. So in the next one, मैंने windshield उतरवाई, मतलब we shot another one after 2-3 months, windshield उतरवाई, and we placed it in a way where there is nothing between you and the character, and थोड़ा हंसी और emotional दोनों सीन था, and that immediately worked. And you were like, look, this part you can't learn from a course, you have to do it. And that's the reason why in Bollywood or in Hindi film industry in Bombay, they make you go through those 10 years of AD-ship to be able to pick up these things, or you are a self-learner and you do. तो बहुत सारी छोटी-छोटी nuances हैं why certain things go well, and a huge amount of respect developed. Like एक बड़ा अच्छा YouTube पे चैनल है, उसमें दे डाइसेक्ट प्रियदर्शनी सर्स फिल्म्स, द कॉमेडी फिल्म्स, and the quality of blocking is the art of placing an actor and the camera in a certain way to create the best impact possible on the audience's mind and to achieve the purpose of that scene. अब आपको लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, अरे अक्षय कुमार यहाँ पीछे, राजपाल यादव जी कुछ कर रहे हैं, यहाँ कुछ हो रहा है, ठीक है, क्या बड़ी बात है. बट नाउ व्हेन यू सी इट एज अ कोरियोग्राफी of a director which is done brilliantly to serve the comic purpose of the scene. तो फिर लगा यार ये तो सागर में you have jumped into a sea and this is going to be never ending, the learning is too much. तो I think that thing helped.
Now to answer your specific point, देखिए you also have to know your limitations. तो मेरे को पता चल गया था, the first time director, to get a good acting output from the actors, I may not be able to do it because I also have I was also the producer. तो पैसे की बातें आ जाती थी, इधर राइटिंग में ही लग जाता, यार ये सीन में डायलॉग अच्छा नहीं चल रहा, कुछ और है. So I hired a acting coach. He's a graduate from NSD. He worked extensively with the three protagonists who are young actors, like I was Got telling it. you earlier, Yes. जैसे Jamtara type new actors थे. So I think you are also a little more self-aware of your limitations. पहले arrogance मतलब पीक पे होती थी, अब थोड़ा सा ये है कि नहीं भाई, दिख रहा है कि आप में कमियां हैं तो ये कर लो. तो वी डिड दैट. इसी तरह कॉस्ट्यूम के लिए मतलब मैंने आज तक कभी किसी की खुद की मतलब यू कैन सी द वे आई एम ड्रेस्ड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड कॉस्ट्यूम्स एट ऑल एंड आई कुड नेवर नोटिस. आई एम स्टिल बैड एट इट, बट आई गॉट अ वेरी गुड AD who was very good at it, and he loves costumes and clothes. And he said यार 90s का पीरियड क्रिएट करते हैं, और उसने क्या मतलब आई होप योर व्यूअर्स एंड आप देखें, बहुत ही बढ़िया उसने किया. आई कुडंट हैव डन इट, which brings me to the point that look, There the are good people thing, there. yes, There are there are people who will help you, and cinema that way is a collaborative mechanism, field. So those upsides are there. You just have to be receptive. मतलब you have to say यार ठीक है, जहाँ से भी अच्छा आइडिया आ रहा है ले लो. अल्टीमेटली तो फिल्म आप ही की रहती है इन सम वे, है ना. मतलब देयर इज नो ईगो इन दैट सेंस कि सेट पे कहाँ से अच्छा आइडिया आ गया. So तो या अब जब it's almost ready for release, yeah. what are the kind of emotions you're going through? तो आई टेल यू, वी हैड बड़ा, हमने ना एडिट पे बड़ा टाइम लगाया. पहला एडिट किया वो गंदा, दूसरा किया वो गंदा, बिकॉज लोगों को दिखाओ बोरिंग है, पसंद नहीं आए, ये वो, बिकॉज सी देर इज अ इंडी सिनेमा which goes to festivals and is kind of funded by grants and has a political theme to it, Sure. etc. And then there is the mainstream one, and we were somewhere in the middle. So वो देखने वालों को लिए भी मतलब किसको दिखाएं और कैसे क्या करें. तो फिर हमने बहुत करके उसे शॉर्ट किया, एंड वी रियलाइज दैट द फिल्म नीड्स टू बी वे शॉर्टर देन वी वर एक्सपेक्टिंग इट. तो 2 घंटे 7 मिनट से फिर हमने उसे 1 घंटा 30 मिनट किया. वो मतलब देयर इज अ डेविड मैमेट कोट, आई थिंक ही ओनली सेड इट, कॉल्ड किल योर बेबीज, व्हिच मींस कि अरे यार ये सीन इतना प्यार से शूट I किया था, बट यू हैव know. टू कट इट बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग इन द फिल्म एनी मोर. तो वो किया. एंड हमारी फिर सिनेवेस्चर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सिफ में, चंडीगढ़ में एक फिल्म फेस्टिवल होता है, इट्स इन 2nd एडिशन, वहाँ पे हमारी स्क्रीनिंग हुई. और 2 शोज थे इन द थिएटर, इन द सिनेमा हॉल, एंड बड़ा अच्छा रिसेप्शन आया. और पहले दिन तो मैं देख भी नहीं पाया क्योंकि आई वॉज टू नर्वस. आई वॉज स्टैंडिंग डाउन स्टेज जस्ट अशरिंग पीपल एंड ऑल ऑफ दैट. नेक्स्ट डे माई एडिटर टोल्ड मी कि आप देख लो एक बार, बिकॉज थिएटर में जाने से पहले दिस इज द लास्ट चांस टू सीट ऑन अ बिग स्क्रीन, एंड इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग यू कैन स्टिल चेंज. So I saw it and I was like यार ठीक है, कुछ Yeah. ठीक है, you've done your job, अब देखी जाएगी. But So I'm in that phase, that way कि काम हो गया है, हमारा काम फिनिश हो गया. अब मार्केटिंग पे पूरा जोर लगाओ, तो वो कर रहे हैं. So cool. No, so while I'm hearing, I'm also thinking how it would be because, during COVID, also the kind of content that people are consuming has changed. Yeah. I mean, the family of the cinema world of somehow. course. So I know that movies which you thought or you think will do really well are literally not. Yeah. And the ones that you feel, oh, isme koi nahi jayega, they are people are all, going. yeah, people are going. So are you like nervous? Like, I don't know. How are you processing I all think this? again I'll go back to मीरा नायर जी का लेक्चर में उन्होंने बोला कि यार देखो, at the end of the film, if one person is happy and that is you, that is all that this field can give you, because everything else is outside your control. मम्मी पापा खुश थे, तो दैट इज नाइस थिंग. माय वाइफ कीप सेइंग नाइस थिंग्स अबाउट इट, सो ठीक है. Very और nice. आदमी को क्या चाहिए, मतलब I इट्स ओके, know. इट्स गुड. बाकी आई एम ओके, मतलब द थिंग इज आई हैव गिवन इट माय बेस्ट शॉट. और द रियलिटी इज ऑल्सो कि यू नो दैट योर क्राफ्ट इज इम्प्रूविंग. सी अगेन स्क्रिप्ट लिखा, शूट किया, एडिट किया इतने टाइम, तो यू आर कॉन्स्टेंटली सीइंग कमियां और उनको आप इम्प्रूव कर रहे हो, तो ठीक है ना. तो देन यू आर इन द राइट जर्नी. अब अगली बार और बढ़िया होपफुली लिख पाएंगे, कर पाएंगे, तो इट्स ओके. मतलब दैट्स ऑल यू कैन आस्क फॉर. So nice. I'm just loving the way that your life has
kind of, you've हाँ जी, allowed your life to जी, be जी, जी। in many acts. So मेरे को वो क्वेश्चन ही पूछने का दिल नहीं कर रहा कि what's your second act, because I can feel that every time that you have done Yes. something, that is a second act, but I also know that it is not easy. So I genuinely want to ask you this question for the audiences, for the younger kids or people who think that funding mil gayi, so that's बिल्कुल, the बिल्कुल। only pivot in life. बिल्कुल, बिल्कुल। And there's so much about startup world today. Yeah. So share something about what is the second act unfolding for you, and what do you want to tell the younger generation of today? देखिए ये ना थोड़ा फिलोसफिकल पॉइंट भी है कि यू हैव वन लाइफ और यू हैव मल्टीपल लाइफ्स। आई एम ऑन द वन लाइफ साइड। अगर एक लाइफ है देन जस्ट थिंक थ्रू द repercussions ऑफ दैट, एंड इफ दैट इज ट्रू एंड यू डाई लाइक यू वर्क टिल 65 and you are unhappy throughout, and then another 10-20 years later you are gone. एंड बड़ा एक उसका अच्छा सा कोट था, लैरी एलिसन, आई थिंक ओरेकल का, he's the CEO, founder. Because death doesn't make any sense. What is this concept? You are here and then you're gone. What is this? तो obviously I know. थोड़े founders थोड़े अलग ही level पे चल रहे होते हैं, immortality वगैरह, but fundamentally if you think about it, what is this? Like you were here and you're gone, and while you were here you were miserable. तो I don't think it has to do with money too much, even though people feel like that. मैं कल परसों बॉम्बे में भी किसी से मिला, वो अभी चलो बॉम्बे की मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में दे आर मेकिंग देयर पाथ, एंड आई वाज टेलिंग देम कि यार देखो थोड़ा सा तो होता है कि यू हैव द रिसोर्सेज बिकॉज दिस फिल्म मे नॉट हैव बीन फंडेड बाय अ टिपिकल प्रोड्यूसर इन बॉम्बे। तो ही इज द वन हु करेक्टेड मी। ही सेड लुक, बहुत लोग हैं जिनके पास पैसा भी है और बहुत लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं भी है, करने वाले चाहिए, है ना? तो आप कर सकते हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, आपकी विजन को सपोर्ट करेगा। जैसे कह लो मेरे स्टार्टअप हुई, और कोई मैं एक ही बंदा हूँ ना, फिल्में तो हर साल जो भी 800 या 1200 या 2000 ऑल इंडिया बन रही हैं, कोई तो उन्हें फंड कर रहा है। सारे ऐसे नहीं है कि सारे वेल कनेक्टेड लोग हैं, उसमें से डायरेक्टर्स और राइटर्स के पैसे शायद 5% में भी ना लगे हों, तो देन आई एम द 5%, 95% तो बना रहे हैं। तो यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट, देर इज नो स्टॉपिंग यू। रिमेंबर, इफ देर इज ओनली वन लाइफ, तो फिर you should get to it sooner rather than later. Yeah, so thank you. But now I want you to tell me, if you had to tell something to 20 years who's younger to you, right, standing there, what is that advice you want to give to this person? I think that Ankur who's looking at you today. that you did the right thing. Yeah, 110%। मतलब अरे पूरी शिद्दत से आप अपने जो भी ड्रीम्स हैं, यू शुड गो आफ्टर देम। व्हाट एल्स, लाइफ डजंट हैव दैट मच एल्स टू ऑफर, बिकॉज इफ यू थिंक थ्रू एवरीथिंग यू रियलाइज कि यही है, करो, मतलब पूरी मेहनत से करो और पूरे फाइंड व्हाट यू रियली आर पैशनेट अबाउट एंड देन गो आफ्टर इट, एंड द वर्ल्ड डज अलाइन। It's a very corny line, वो Alchemist वाली, कि the universe conspires to, but it is true. It does. आपको बस लगे रहना है और मेहनत करनी है और हो जाता है। So I'm so happy to meet you today, and this is exactly what I keep saying about second act. You're a true role model for that, to be honest. Okay, thank you. And thank you for opening up and just speaking. The entire journey was lived by me while you were speaking, how you must have gone step by step. And I know that it takes also a huge support system at the back to make it possible. Yeah. Without that, it's not possible. So giving a shout out to your wife today was very amazing. And I hope that she hears it many, many times over, that how she stood by you, and that really mattered. So, yes, rooting for you. Thank you so much. And I want to know, if the next one will come, what would you really title that movie? I have no clue. Again, मतलब थोड़ा ज्ञान ही है, बट एक I had heard some very good directors, one of the best directors in India's interview, he said कि यार मैंने ना पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम अगली फिल्म पे काम चालू कर दिया था और उसके कारण कहीं ना कहीं कमियां रह गई। तो मेरे को वो भी अच्छी लगी बात कि यार अभी मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, इसको अच्छी तरह टिल द पॉइंट दैट द रिलीज डजंट हैपन एंड आई हैव डन एवरीथिंग, देन आई विल टेक अ ब्रेक, देन आई विल थिंक। तो अभी अब आराम आराम से अच्छी चीज़ें करनी है। अगर चीज़ अच्छी हो जाए ना तो फिर इट्स ओके, ऑल द हार्डशिप्स आर ओके, वर्थ इट। अगर चीज़ ही ना अच्छी हो तो फिर बड़ा बुरा लगेगा। और मैंने बहुत बार ऐसी चीज़ें की हैं जो इतने मन से बनाया, इतना पूरा अपने को घुसा दिया उसके अंदर, सो समथिंग ब्यूटीफुल विल कम आउट। सो
Thank you, and the whole of second act team will be rooting for you. We Thank will you so all go much. to see the Please, movie. thank you so much. And And thank कमियां you. होंगी, I'm sure, but कर रहे हैं हम, better हो रहे Don't हैं say और that. I think I'm sure that something beautiful is coming out of this. thank you so much, ma'am. So congratulations again. Thank you. Okay. Thank you for having me.